Firstly, my advice to you is please lose weight. बहुत, you are overweight by a huge margin. And you are talking of military affairs. First lose some weight. I mean, this is a very friendly piece of advice. बदतमीज. तुम्हारी मूंछों के साथ look. बाकी अगर आप लोग ये जो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ। वीडियो आगे चलकर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मैसेजेस किए हुए थे कि ये जो एक इशू चल रहा है इस पर आप बात करें। क्यों इस पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि हैदर हयात खान के बारे में भारत का पूरा सोशल मीडिया हो या फिर प्राइम मीडिया, वो ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे बाबे के साथ बदतमीज़ी की। अपने बाबे को भी तो ज़रा लगाम देकर रखो, अपने बाबे को भी ज़रा नथ डाल कर रखो। वो जो फुदक कर गालियाँ निकालता है, लिटरली गालियाँ निकालता है पाकिस्तान को। इसने कई बार निकाली हैं गालियाँ और मैं अपनी वीडियोज़ में वो दिखा चुका हूँ। छोड़ो इस बाबे को, इसके अलावा तुम्हारा ये जो एंकर बैठा हुआ है अर्नब गोस्वामी, ये गालियाँ निकाल चुका है। इवन के गोबर आरिया समेत बेशुमार ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं जो प्राइम मीडिया पर बैठकर झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, साथ गालियाँ और बकवास भी करते हैं। पाकिस्तानियों की नस्ल पर बात करते हैं, पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पर बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर की फैमिलीज़ पर इन्होंने पूरे प्रोग्राम्स किए हैं। यानी पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो उस पर ये जो मर्जी बकवास कर दें, और जब जवाब मिलता है तो फिर फुदकते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी करते हैं पाकिस्तानी आकर। बहुत अच्छा किया है हैदर हयात खान ने। आप ये वीडियो देखिएगा आगे चलकर तो आपको डिटेल में पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि अर्नब गोस्वामी पहले क्या करता रहा और फिर उसके बाद हैदर हयात खान ने जब जवाब दिया तो कैसे फिर ये चीखें मारते और फुदकते दिखाई दिए। We really would like to know from you, why are you scared that we will step in? We are only doing some fairly complicated, technologically advanced military exercises, and I have not understood yet why you have to overreact in the way that you are doing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अर्नब। वेल, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। Then why are you issuing a NOTAM and things like that? अगर आप लोग हकीकत में आना चाहते हैं, कम ऑन आ जाओ। जिस तरह पहले आप लोगों का इस्तकबाल किया वैसे ही इस मरतबा इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह पहले अंजाम किया उससे भयानक अंजाम इस मरतबा करेंगे। तो हम लोगों को Our question is, why are you 1 minute? Haidar, can you Haidar, I want to ask you why. The only question is this, that when we are having our military exercises, why are you reacting in this way? It seems from your reaction, just 1 minute. Haidar, listen, I need to speak to you properly. If you can speak, and if you can put your camera a little parallel to your face, it would give us a better view. My question to you is that the initial planning phase has started. The exercise period has not even started. It is going to start. But this time, as you know, we have added the element of space warfare, AI, and different level of technology and AI-enabled tracking algorithms to be able to hit harder in a theaterized environment. I'm only wanting to ask, why is your Navy chief running there? Why are you issuing a NOTAM? Why are you jumping around? Why have you started making calls to countries all over the world? Why did you contact China saying that India is doing a major military capability exercise? Let us do what we are doing. How can China help you? Okay, Arnab, give me just a single evidence of Pakistan contacting other countries. Well, it has been reported everywhere in your Pakistani media that you have contacted. It is all over the Pakistani media. But it is over the Pakistani media. Show some courage. But why has the Pakistani media reported that you are contacting, calling defense attaches of China and other countries who are based in Pakistan to give a briefing on Indian military exercises? How will the defense attaches of America and China help you? अगर तुमने vlog करना है तो मुझे यहाँ पे dinner से क्यों उठा के यहाँ पे? Why would the defense attaches of China? आप और dinner मत करो, रात को इतना dinner मत करो. You must lose some weight. यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये अर्नब गोस्वामी उसे कहता है कि तुम रात को डिनर मत करो, अपना कोई वेट कम करो। यानी शुरू कौन करता है? ये बेशरम अर्नब गोस्वामी। मट्टी पलीत किसकी होती है? जनरल बख्शी की। आगे सुनते हैं।
अगला Now- डिनर अर्नब में आके तुम्हारे My- स्टूडियो my में करूंगा। question जब to you is, तुम why are you लोग contacting the Chinese? करने के बाद हम बैठे होंगे ना, Why are you मैं contacting the अगला dinner Chinese? मैं तुम्हारे स्टूडियो में करूंगा। Why are you अगला dinner contacting मैं the तुम्हारे Chinese, स्टूडियो the में करूंगा। Americans, defense attaches, telling them about India's military exercise? ये इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? पाकिस्तानी मीडिया में पब्लिश हुई है, आप जरा देख लीजिए अपने मीडिया को। आपके सारे कंट्रीज के मीडिया, आपके यूट्यूबर्स, उन्होंने लगा दिया है खबर दैट यू बीन डूइंग दिस, कॉन्टैक्टिंग फॉरेन कंट्रीज अबाउट इंडियाज मिलिट्री एक्सरसाइजेस। झूठ बोल रहा है ये, किसी ने कोई खबर नहीं लगाई, कोई पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबर नहीं आई कि पाकिस्तान ने फौरन चाइना से कांटेक्ट किया है कि देखो जी इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ह्यूज। झूठ बोल रहा है। अब भाई आगे सुनता है। कर रहे बगैर ही आप लोग इस तरह आके यहाँ पे झूठ जो है वो बोलना शुरू कर देते हो। You are abusing your own Pakistani media now. बाकी अगर आप लोग ये जो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ। आपको किसने रोका है? हमारे कहने से तो नहीं रोकोगे ना हमें रोकने आपको, हम तो चाहते हैं। जनरल बख्शी, आओ आप लोग हमारी तरफ। हम जनरल लोग बख्शी, पहले 7 गिराए थे, इस दफा 70 गिरा देंगे। तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है ना, हमें खौफ है। जब दिल करे Okay, boy, we heard you. आओ इधर। We heard you. बैठा हुआ Yeah, we heard you very patiently. Firstly, my advice to you is please lose weight because at this rate you are going to get blood pressure. You know, obesity leads to blood pressure. आप बहुत, you are overweight by a huge margin. यू आर ओवरवेट बाय अ ह्यूज मार्जिन। ये कौन कर रहा है? बॉडी शेमिंग कौन कर रहा है? 80 साला बूढ़ा जनरल बख्शी। और फिर जब इन्हें जवाब मिलता है तो फिर ये चीखें मारता है। जरा आप सुनिएगा जवाब। And you are talking of military affairs. First lose some weight. I mean, this is a very friendly, please, friendly piece of advice. बदतमीज। I think watch your bloody tongue, okay? louder for अभी general. हो गया है। Lower for it. Okay, shut up कर रहा है मोटा। तुम्हारी मूंछों के साथ Look. Firstly, I'll answer Major Nadeem. Major Nadeem said, "Come and test out your navy." अब इस सारी कहानी में आपने देख लिया कि पहले अर्नब गोस्वामी ने उसके डिनर पर बात की कि ना करो तुम्हारा, पहले ही तुम ओवरवेट हो। फिर जनरल बख्शी जब आता है फौरी तौर पर उसे कहता है कि तुम जो है ह्यूज मार्जिन से तुम जो है ओवरवेट हो, तुम्हें टेंशन होगी फलाना फलाना, यानी डायरेक्ट उसकी ज़ात पर अटैक किया। फिर उसके बाद उसने जब जवाब दिया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे मत देना, तो फिर भारतीयों को चीखे, तो फिर भारतीयों की चीखें शुरू हुई और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया हाउसेज में भी इसको चला कर ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे बुजुर्ग के साथ इन्होंने बदतमीजी की। इस बुजुर्गी पर जवाब आया है हैदर हयात खान का, वो ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि एक इंसानियत में और बेशर्मी में कितना फ़र्क है, किस तरह वो इस सारे मामले को लेकर हैदर हयात खान बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर हयात खान। परसों मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड की थी जो भारतीय चैनल रिपब्लिक वर्ल्ड में अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम की वीडियो थी, जिसमें मेरे और भारतीय आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी के दरमियान एक बहस हुई थी और उसमें जनरल बख्शी ने मुझे पर्सनली अटैक किया, जिसके जवाब में मैंने भी उनको पर्सनली अटैक किया। बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके जनरल साहब ने वो बात की थी। बात हो रही थी जो भारत त्रिशूल के नाम से भारतीय अफवाज जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, और उसके ऊपर वो बहस हो रही थी जिसपे आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मुझे पर्सनली अटैक किया, जिसके जवाब में मैंने भी उनको पर्सनली जो है वो हिट किया। बहुत से लोगों ने कहा कि बेहतरीन किया आपने, अच्छा किया कि जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल उन्होंने किया आपने भी उसी ज़बान में उनको जवाब दिया, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि वो मतलब गैर मुनासिब जवाब था और मतलब हीट ऑफ द मोमेंट थी वो। उन्होंने मुझे पर्सनली हिट किया, मैंने फौरी तौर पर जो है वो जो मेरे मुंह में आया मैंने जनरल साहब को वो जवाब दे दिया। जो मुझे अफसोस है कि मुझे इस तरह की ज़बान का और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे पर्सनली हिट किया था, मैं पर्सनली उनकी ज़ात की हद तक उनको हिट करता, उनकी फैमिली से मुतल्लिक मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर मुझे अफसोस। ये है डिफरेंस पाकिस्तानियों में और उन बेगैरतों में कि ये शख्स उस तरह के हमलों के बाद भी जनरल बुड्ढे को सॉरी कर रहा है कि यार तुम्हारी फैमिली की मैंने बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं माजरत ख्वाह हूँ, और इवन ये फ़ोन कॉल भी की उस बुड्ढे को। जबकि उनकी तरफ से कभी आपने ये देखा है कि इस तरह की कोई ऐसी एग्जाम्पल सामने आ सके कि जब वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में बकवास करते हैं, गोबर आरिया हो, जनरल बख्शी हो, इनके आप वीलॉग्स उठा कर देखें, सीधी गालियाँ निकालते हैं, पाकिस्तानियों की नस्ल तक को गालियाँ निकालते हैं। ये फ़र्क है इन बेशर्मों में और पाकिस्तानियों में। बहरहाल हैदर हयात खान ने उस वक्त जो किया हम उसके साथ भी खड़े हैं, और जो अब किया हम इनके जज्बात की कदर करते हुए इसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन मेरे जैसा कोई होता
तो कभी ना तो माफ़ी मांगता, बल्कि 2-3-4 और भी जनरल बख्शी को सुनाता, क्योंकि वो पाकिस्तानियों पर बहुत बार बकवास कर चुके हैं। सारे मामले पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।